تو میں پچھلی بار جو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب سنو پڑی ہوئی تھی، برف پڑی ہوئی تھی، تو میں اس وقت نگینا پوسٹ پہ تھا. بیچ میں کبھی کبھی جب ضرورت پڑتی تھی تو اس وقت مجھے ڈیٹیل کر دیا جاتا تھا. جو نیچے نیتی اور گیتا پوسٹ تھی ان کے اوپر بھی کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی تھی. کمپنی کمانڈر وہاں نہیں ہے یا کوئی آفیسر نہیں ہے تو میں وہاں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر چلتا رہتا تھا. اس وقت آج کل کے جو ہمارے پاس ونٹر میں پہننے کے کپڑے یا ونٹر میں پہننے کے جوتے ہیں وہ نہیں ہوتے تھے. وہ بڑے سارے بوٹ ٹائپ ہوتے تھے جن کے آگے کلپ لگے ہوتے تھے. آدھوں کے کلپ تو ٹوٹ چکے تھے. پھر لڑکے اس کے اوپر رسیاں باندھ لیتے تھے اور پہنے رہتے تھے. اس بڑے بوٹ کے اندر جو ربر کا ہوتا تھا اس کے اندر ہم پی ٹی شو پہن کر اس کے اندر اپنے پاؤں ڈال لیتے تھے. تھوڑا گرم رہتا تھا. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ جو لوکل بچے ہیں وہ ننگے پاؤں برف کے اوپر بھاگتے رہتے ہیں. اور جو یہ باقی بھی، اور ان کی ایک ہی قمیض انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے. نیچے سے جو چھوٹے بچے ہیں نیچے انہوں نے کوئی پجامہ وغیرہ بھی نہیں پہنا ہوتا. تو یہ بعد میں جیسے ہمیں پتہ چلا کہ اس کو ایکلیمیٹائزیشن کہتے ہیں. اس کے بعد جب بھی میں ہائی آلٹیٹیوڈ میں گیا یا جب بھی کوئی پلٹن ہائی آلٹیٹیوڈ میں جاتی تھی تو وہ ایک ہفتے کے لیے ایکلیمیٹائز کرتی تھی سرٹن آلٹیٹیوڈ کے اوپر. اور اگر وہ اوپر زیادہ اوپر جاتی تھی تو وہ 2 بار اس کو ایکلیمیٹائزیشن کرنا پڑتا تھا. ایک بار تھوڑے کم آلٹیٹیوڈ پہ، اس کے بعد تھوڑے اونچی آلٹیٹیوڈ پہ، تاکہ جوان جب جائیں تو ان کا جو جسم ہے وہ زیادہ ٹھنڈ کو سہنے کے قابل ہو. تو یہ بھی چیزیں تھیں جو آپ کو اکیڈمی میں ٹریننگ کے دوران پتہ نہیں چلتی. کہ جب آپ پلٹن میں آتے ہو، ایسے ایریا میں نوکری کرتے ہو، تب آتے ہو. جو ہی وہ ہم برف ختم ہوئی فروری مارچ 58 میں 57 میں، تو اس وقت مجھے نیچے بلایا گیا. امیدوار کاڈر چل رہا تھا. امیدوار کاڈر از اسپائی ٹو لانس نائک کیڈر. مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ سپٹمبر میں ویپن کورس پہ جاؤں گا اور اس لیے اپریل میں جو امیدوار کاڈر ہو رہا ہے اس میں بھی حصہ لوں گا. تو میں بھی امیدوار کاڈر میں سب جوانوں کے ساتھ بیٹھ ڈیٹیل ہو گیا. میں نے بھی ان کے ساتھ وہاں حصہ لینا شروع کر دیا. ہمارا انسٹرکٹر تھا لانس نائک سائیں داس، جس کی اس وقت تقریباً 11.5 سال نوکری تھی. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 11.5 سال کے بعد وہ پیڈ لانس نائک بنا ہوا تھا. یعنی کتنی سلو پروموشن ہوتی تھی. جو جتنے یہ جو جوان جے سی او اور این سی او آئے تھے بلوچ ریجمنٹ سے. دوسرا جو استاد تھا، جو سائیں داس کا بھی استاد تھا، اس کا نام تھا درگا داس، حویلدار درگا داس. درگا داس ایک اے ایکس آئی لا کے آیا ہوا تھا. بڑا اچھا کیپیبل انسٹرکٹر تھا. اور اس نے اردو میں اپنی پوری جتنی بھی آئی پی ہوتی ہیں جن کو ہم چلاتے ہیں کہ کس طرح سے ویپن ٹریننگ کی جاتی ہے، کس طرح سے رائفل کو کھولا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، یا کس طرح سے رائفل کے اوپر ایم لیا جاتا ہے، یہ سب اس کورس کا کیڈر کا حصہ ہوتا ہے. تو اس نے اپنی جو کتاب بنائی ہوئی تھی اردو میں لکھی ہوئی تھی اور وہ مجھے دے دی کہ صاحب اس کو پڑھا کرو، کیونکہ مجھے اردو اسکرپٹ آتا تھا. بڑا اچھا خوشنما اس کا ہینڈ رائٹنگ تھا اور اس نے یہ دی ہوئی تھی. اور میں نے اسی سے خود اپنے لیے بھی ایک کتاب بنانی شروع کر دی. تو یہ تھے ہمارے انسٹرکٹر. ابھی میرا ٹریٹمنٹ کیا تھا، میرے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا تھا امیدوار کاڈر کے اندر. سائیں داس لانس نائک نے کبھی بھی جوانوں میں اور میرے میں فرق نہیں دیکھا. سائیں داس کے لیے میں بھی ایک جوان تھا، اور بلکہ وہ میرے سے امید رکھتا تھا کہ میرا ڈسپلن، میرا بات چیت کا ڈھنگ، میرا جواب دینا
जवानों से बहुत अच्छा होना चाहिए, और इससे उम्मीद ही नहीं रखता था। इसके लिए मुझे काफ़ी रगड़ा भी लगाता था। तो मुझे ये महसूस हुआ, मैंने आपको बताया था कि किस तरह फील्ड फायरिंग के दौरान हवलदार प्रेमचंद ने कहा कि साहब आपने बहुत नौकरी करनी है। तो एक वो रवैया था, कितनी इज्जत थी। दूसरा ये रवैया था कि जब आप ट्रेनिंग के अंदर हो तो आप एक, जब जवान की तरह ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप एक जवान हो, अपने आप को अफसर मत समझ के यहाँ बैठा करो। और उसने खूब रगड़ा लगाया। उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि मैं कोर्स पर गया और अच्छा कोर्स किया मैंने। उसके बाद बीच में ये हुआ कि हमारी जो पलटन थी, 1 साल खोरपाड़ा में रहने के बाद वो उसको छमकोट या तिथवाल के एरिया में बदली कर दिया गया। तिथवाल और छमकोट का एरिया थोड़ा प्लेन एरिया है और बिल्कुल जो किशन गंगा दरिया है उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर है। जब हम वहाँ से खोरपाड़ा से नीचे तिथवाल के एरिया में आए, हमने बदली किया, तो उस वक़्त जो हमारी पिकेटें थी वो भी बदली होनी थी। जो जिस जगह, जिस पलटन को हमने रिप्लेस किया था, जिसकी जगह हम आए थे, जो उसकी पिकेटें थी उनका नाम था केला, लाला, गोभी। तो वो तीनों हमने पिकेट टेक ओवर करनी थी। मेजर गिल साहब को रैकी के लिए भेजा गया और साथ मुझे भी डिटेल किया गया कि आप भी जाओगे। तो हम सारा पूरी तीनों पिकटों की रैकी करके, और ताकि हम आके अपने जवानों को ब्रीफ कर सकें, और जब हम उन पिकटों को पर जाएं तो हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, या किस तरह का हमें फ़र्क महसूस होगा। जो पिकेट नगीना 1, 2, 3 थी, उनसे केला, लाला, गोभी में किस तरह का फ़र्क होगा। तो ये भी किया। जब हम वापस आए, मैस में बैठे हुए थे, तो सीओ साहब ने पूछा कि भाई कैसा रहा, क्या हुआ। शाम को मैस में बात हो रही थी, तो मेजर गिल साहब उनको बता रहे थे। बीच में शायद 1-2 बार मेरा भी मुंह खुल गया। सीओ साहब ने बड़े ध्यान से सुना जो भी मैंने कहा, लेकिन जो ही डिनर ख़त्म हुआ उसके बाद मेजर गिल साहब ने मेरी क्लास ले ली। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अफसर इंचार्ज कौन था ये रैकी के लिए। मैंने कहा सर आप थे। तो तुम बीच में क्यों बोल रहे थे। मैंने कहा सर मैंने सोचा मैं भी कुछ बता दूं कि भाई मैं भी साथ गया था और मैंने भी ये देखा। कोई ज़रूरत नहीं, आगे से जब पूछा जाए तब बोलना। पहले भी मुझे ये एक बार बताया जा चुका था, उसके बाद फिर ये बताया गया। खैर उसके बाद वेपन कोर्स आ गया और मैं वेपन कोर्स पर चला गया। तो वेपन कोर्स में मैं सितंबर 57 में गया था। जो ही मैं श्रीनगर पहुंचा तो वहाँ एक और भी अफसर जाने वाला था वेपन कोर्स, मद्रास रेजिमेंट से, लेफ्टिनेंट गंगूली। वो भी वहाँ बैठा था। कहने लगा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा भाई वेपन कोर्स पर। कहने लगा मैं भी जा रहा हूँ। तो वहाँ से जैसा मैंने बताया कि हम कानवाई के रास्ते जाते थे। पहली बार जीप मिल गई थी श्रीनगर से यूनिट तक आने के लिए। इस दफ़ा वो जीप नहीं थी, इस दफ़ा 3 टन में बैठ के अपना आराम से ठुलकते हुए आए। वहाँ फिर अब्दुल के पास मुलाकात हुई और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पठानकोट पहुँचे। तो गंगूली और मैं चूँकि इकट्ठे दोनों वेपन कोर्स पर जा रहे थे, हमें पता नहीं था कि मऊ में कैसे पहुँचते हैं। गाड़ियाँ थी, उनके ऊपर रिजर्वेशन हुई थी। तो हम गाड़ी में बैठ गए और पता चला कि रतलाम जाके आप उतर जाएंगे और रतलाम से मीटर गेज गाड़ी जाती है जो मऊ के लिए जाती है। तो हम पठानकोट से बैठे रतलाम उतरे और रतलाम से मीटर गेज गाड़ी में जाकर बैठ गए। वो गाड़ी शाम को चलती है, आराम से चलती थी और आकर सुबह तकरीबन 4 बजे मऊ पहुंची। सुबह 4 बजे चूँकि वो जो ही कोर्स शुरू होने वाला होता है तो उस वक़्त वहाँ कोई ना कोई उन्होंने रिसेप्शन लगाया होता है। तो वहाँ
3 टन, वही 3 टन थी। वहाँ एनसीओ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, हमने बताया भाई हम वेपन कोर्स के लिए आए हैं, प्लाटून वेपन्स के लिए। तो उन्होंने हमारे नाम लिखे, उन्होंने कहा इस गाड़ी में बैठ जाओ। हम वही बैठ के जिस तरह मैंने JSW में ट्रेनिंग की थी ना, जिस तरह की प्रिजनर ऑफ वॉर बैरक वहाँ थी, इसी तरह की प्रिजनर ऑफ वॉर बैरक जो थी वो मऊ में भी थी, जिसमें हमें रखा गया। तो हम उस बैरक में चले गए। तरतीब ये होती थी कि जो सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट होते थे वो हर कमरे में 2 होते थे। तो मैं और गंगुली जो थे वो दोनों एक कमरे में रख दिए गए। हमारे साथ वाले कमरे में एक कैप्टन साहब थे, कैप्टन सुखजीत सिंह साहब। तो वो मेरे साथ वाले कमरे में थे। उनके अगले दिन मेरी मुलाकात हुई। एक हमें साइकिल मिलते थे जिसका हम 6 रुपया किराया देते थे। उन साइकिलों में ना आगे मड गार्ड होता था ना पीछे मड गार्ड होता था। और बारिश के अंदर जब आप उस साइकिल पर क्लास में जाते थे तो उसकी जो पूरी पिछले वाले टायर की जो पानी की धार है वो पूरे आपको सिर तक गीला कर देती थी। तो ये थे साइकिल, उनको पैरासाइकिल कहते थे। तो वो हमको मिलते थे। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात हुई लोगों से, कोर्स शुरू हुआ। कोर्स में हमारे जो SI थे वो एक सरदार जी थे पंजाब रेजिमेंट के। तो उन्होंने जब पहले दिन हमें लेक्चर दिया तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपनी पलटन में लोगों की फायरिंग अच्छी करने के लिए ये शुरू किया था कि दही खाना चाहिए, उससे दिमाग ठंडा रहता है और आपकी फायरिंग अच्छी होती है। तो गंगुली ने जब हम कमरे में पहुंचे तो उसने उनका नाम रख दिया दही का लोटा। तो जब भी वो घूमते फिरते थे तो गंगुली अगर मेरे पास कहीं स्क्वाड में होता था उसने कहा भाई दही का लोटा आ गया है। तो ये उनका नाम रख दिया क्योंकि उन्होंने दही का जिक्र किया था। शाम को क्या होता था, सितंबर थे, थोड़ी गर्मी थी, तो हम बाहर विरांडा था। विरांडा थोड़ा ज़मीन से ऊंचा था, छता हुआ विरांडा था, लेकिन विरांडा था जैसे हमारे पास, ये मैंने बोला JSW में हमारे विरांडे थे। तो उस विरांडे में मैं आके बाहर बैठ जाता था। पास्चराइज्ड मिल्क आया करता था, दूध पास्चराइज, तो वो मैं ले लेता था और पाँव लटका के नीचे रख के विरांडे में हम बैठ जाते थे ज़मीन के ऊपर। मेरे साथ ही दूसरे कमरे में आके सुखजीत ने बैठ जाना। तो मैंने कहा सर कैसे हाल है, ये वो कहने लगा यार कोर्स है, सर की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, आप फिर भी सीनियर हो। कहने लगा अच्छा ठीक है, मेरा नाम सुखी है, सुखजीत है। वो आमन कोर्स से थे। तकरीबन महीना 1.5 महीना निकल गया और हमारी सब की जब हम मेस में खाना खाने जाते थे तो जितनी भी हमारी चिट्ठियाँ आती थी ना वो एक बड़े सारे टेबल के ऊपर पड़ी रखी थी। जैसा एक टेबल, बहुत सारा बड़ा टेबल था, उसके ऊपर सारी चिट्ठियाँ रखी रहती थी। आप गए, आपने देखा भाई कोई चिट्ठी तो नहीं आई, आपने दाएं बाएं देखा तो वो आपने अपनी चिट्ठी उठा ली। पीछे पिजन होल भी थे, लेकिन पिजन होल इतने नहीं थे, हमारे कोर्स की नफरी काफ़ी होती थी और पिजन होल में डालने के लिए किसी को मेहनत करनी पड़ती थी। तो ऐसी मेहनत कोई नहीं करता था, सारी चिट्ठियाँ टेबल पर रहती थी। तो हम अपनी चिट्ठियाँ उठा लेते थे, अंदर खाने में डाइनिंग टेबल में चले जाते थे। एक दिन मैंने अपनी चिट्ठियाँ देख रहा था तो मैंने देखा, मेरे साथ गंगुली था क्योंकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, तो हम आ रहे थे। तो मैंने देखा कि एक चिट्ठी पे लिखा हुआ है महाराजा सुखजीत सिंह जी। तो गंगुली कहता है यार ये साला महाराजा हमारे पास कौन है, साथ कौन कर रहा आया है, यहाँ कहाँ क्या कर रहा है उसकी चिट्ठी। मैंने कहा पता नहीं यार। तो हम दोनों आगे निकले, पीछे कैप्टन सुखजीत आ रहा था, उसने चुपके से वो चिट्ठी उठाई और अपनी जेब में डाल दी। खैर खाने पे तो वो मिला नहीं क्योंकि हम एक कहीं और बैठे हुए थे टेबल पे, वो कहीं और बैठा हुआ था। शाम को जब हम दोनों विरांडे में बैठे हुए थे तो दूध पी रहे थे दोनों, पास्चराइज्ड मिल्क। तो मैंने कहा सुखी सर
यू आर महाराजा ऑफ कपूरथला। ओ हाँ यार, ठीक है, नंबर आ गया, मैं बन गया। माई फादर डाइड, तो आई एम नाउ। मैंने कहा सर पता ही नहीं चला। वो कहने लगा ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ट्रांजिएंट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो आदमी इतना दौलतमंद था, जो अपने लिए एक कोर्स के अंदर एक कार खड़ी कर सकता था आने जाने के लिए, वो हमारे साथ 6 रुपए के बाइसिकल के ऊपर जाता था। दूसरी बात ये कि महीना भर हमें पता ही नहीं चला कि ये महाराजा ऑफ कपूरथला है। मेरा उनके साथ पूरी सर्विस भर राब्ता रहा, मुलाकात रही, बहुत एक दूसरे के साथ खलूस रहा और मैं काफ़ी दफ़ा उनसे मिलता रहा। लेकिन कभी भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ और ना उन्होंने कभी ये महसूस होने दिया कि उनके अंदर पैसा या टाइटल की कोई बू है। कुछ ऐसा नहीं था। आज आप देखते हो किसी के पास 4 पैसे आ जाते हैं तो वो समझता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन जो बड़े आदमी थे वो ये थे। और इसीलिए वो जो कहते थे ना ब्लू ब्लड, यही ब्लू ब्लड होता है कि आपको पैसे की खुमारी जो है वो नज़र नहीं आती। तो ये मेरे लिए ये एक बड़ी बड़ी सिखलाई थी। बाद में मैं एक और महाराजा साहब से भी मिला, उसकी बात बाद में करूँगा, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ अपनी इस वेपन कोर्स ही बता रहा हूँ। और मेरा ही नहीं, गांगुली को और मुझे तो पता चल गया, बाकी कोर्स में किसी को खबर तक नहीं हुई जब तक कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलनी नहीं शुरू हुई कि ये भाई महाराजा ऑफ कपूरथला है। तो ये उन लोगों का बड़प्पन था और ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए। सर्विस में भी यूँ यूँ हम आगे बढ़ते हैं, मैंने बहुत सारे सीनियर अफसरान के अंदर भी ये देखा कि जो रैंक था उनके ऊपर कितना आराम से बैठता था। कभी उन्होंने अपना रैंक नहीं फेंका कि मैं आपसे सीनियर हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी सिखलाई थी।